it. Now we go to the other book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और हम रिच कैसे बनना है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं. And Megha Gupta is reading for us our beautiful next topic, the measure of true success. Hello, ma'am. Hello. Hello, good morning. Morning, ma'am. The measure of true success. Some people may say, but Mr. James made a fortune in selling fra- uh, fraudulent oil stock. A man may seem to succeed for a while, but the money he obtained by fraud usually takes wings and flies away. When we rob from another, we rob from ourselves because we are in a mood of lack and limitation, which may manifest itself in our body, home life, and affairs. What we think and feel, we create. We create what we believe. Even though a man may have accumulated a fortune fraudulently, he is not successful. There is no success without peace of mind. What good is man's accumulated wealth if he cannot sleep nights, is sick, or has a guilt complex? I knew a man in London who told me of his exploits. He had been a professional pickpocket and had amassed a large amount of money. He had a summer home in France and lived in a royal fashion in England. His story was that he was in constant dread of being arrested by Scotland Yard. He had many inner disorders, which were undoubtedly caused by his constant fear and deep seated guilt complex. He knew he had done wrong. This deep sense of guilt attracted all kinds of trouble to him. Subsequently, he voluntarily surrendered to the police and served a prison sentence. After his release from prison, he sought psychological and spiritual counsel and became transformed. He went to work and became an honest, law abiding citizen. He found what he loved to do and was happy. A successful person loves his work and expresses himself fully. Success is contingent upon a higher ideal than the mere accumulation of riches. The man of success is the man who possesses great psychological and spiritual understanding. Many of the great industrialists today depend upon the correct use of their subconscious mind of their success. आई थिंक ये Their थोड़ा सा ब्रेक लेके समझ लेते हैं. बहुत लंबा टॉपिक है मेगा. 2 मिनट का पॉज ले लेते हैं. तो इसमें एक आदमी के बारे में इसमें सक्सेस का मतलब बताया हुआ है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है. सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे पैलेशियल बंगले हैं और सिर्फ 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं बिजनेस क्लास में. सक्सेस उसका मतलब नहीं होता है. सक्सेस का मतलब होता है आपके चारों एरियाज बैलेंस्ड है. जैसे अगर किसी के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको सक्सेस नहीं बोलते. सक्सेस में मतलब सब कुछ प्लेस में होना चाहिए, लाइफ में बहुत हार्मनी होनी चाहिए और पीस होना चाहिए. जैसे इसमें लिखा है, सक्सेसफुल मैन इज अ पीसफुल मैन. ओनली वे देर इज पीस देर इज सक्सेस. अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई पैसे कमा रहा है, जैसे इसमें सम मिस्टर जेम्स के बारे में बताया है ना. तो सम मिस्टर जेम्स के बारे में बताया तो ये बताया है कि वो बहुत गलत तरीके से पैसा कमाते थे. होगा कुछ स्मगलिंग वगलिंग का काम जो भी है. तो गलत तरीके से पैसे कमाते थे लेकिन पैसा बहुत कमाते थे. तो वो बोलते थे कि उनको हम सक्सेसफुल थोड़ी बोलेंगे, चाहे उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, बिकॉज उनको ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में पता होती है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और ये सही नहीं है ना. और दिमाग हमेशा उल्टा चल रहा होता है. वो सक्सेसफुल नहीं थे. उनको रात को नींद नहीं आती होगी, वो सोने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स और वो सब स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे. इस तरीके से अगर हम चाहे हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है लेकिन हम उसकी वजह से सो नहीं पा रहे या हमारी कोई आदतें ऐसी हैं, तो चाहे आपको कितना भी पैसा आ जाए, यू विल नॉट बी पीसफुल. वो पैसा आएगा और चला जाएगा,
है ना। जब भी दिमाग में पीस नहीं होता, पीस एंड प्रोस्पेरिटी हमेशा साथ साथ रिसाइड करते हैं, दोनों चिपको होते हैं एक दूसरे से, तभी हम आपको कराते रहते हैं लगातार, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड। बिकॉज ये वाला करते ही आपके पास पैसा चिपकने लग जाता है, और पीस ऑफ माइंड से आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, बिकॉज यू आर पीसफुल, राइट। तो रिश्ते खराब क्यों होंगे? आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा शांति है आपके मन में दैट आप कोई भी अशांत चीज ना सोच रहे हो, नहीं नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से रिश्ते खराब हो ही नहीं सकते। पीसफुल हार्ट जो होता है वो हमेशा लोगों लोगों के मेहनत को समझता है ना। जैसे मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ, कल भी हमारी जैसे गुड़गांव में मीटिंग थी, तो पूरे टाइम मैं उनको ये बोल रही थी कि लाइक एवरीबडी वाज लाइक, ओ शी इज लाइक सच एन अमेजिंग वर्कर, कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, मतलब अगर दीप्ति कुछ काम कर रही है तो मतलब हो गया, उस दोबारा मुड़ के न बोलना सोचना कुछ देखना भी नहीं पड़ता, वो काम होके एग्जीक्यूट होके वो फ्लो पे चला जाता है। So I was just telling them again and again that it is not because of me, it is because of, the incredible team that I work with. तो मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, तो ये पीछे से पूरा काम संभालते हैं, है ना। एसएल ग्रुप में भी एमएनएम, द पीपल हु आर वर्किंग सो सेल्फलेसली, मतलब कितना फॉर्च्यून वो अटेन कर रहे हैं इन द रेल्म। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, मैं तो बस 6 से 7 ये वाले सेशंस ले पाती हूँ, है ना। ऑफ कोर्स एमएमबीजी इज माय बेबी एंड शालिनीज वो भी, बट लाइक मेजरली इतना ही। लेकिन कितना सारा आप लोग को वो ट्रांसक्रिप्शन नोट्स और ये सब मिलते जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 6 बजे इंस्टाग्राम का फीड चला जाता है, पोस्ट चला जाता है। सो देयर सो मच वी गिव क्रेडिट टू। कल भी मैं यही बता रही थी, देयर वाज समबडी न्यू हु हैड कम एट अ वेरी सीनियर पोजीशन इन आवर ऑफिस, तो वो मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरे मेंटोर्स ऐसे थे। मैंने कहा मेरे मेंटोर्स ऐसे ना, उनकी वजह से मैं ऐसी हूं। तो जो आप मेरी इतनी ज्यादा तारीफ सबके मुंह से सुन रहे हो, वो सिर्फ इसीलिए है बिकॉज मेरे मेंटोर्स ने ऐसे किया। मैंने उनका नाम ले लेके बताया दैट दीज हैव बीन द पीपल, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जहां से मैंने कोर्सेज किए, उससे वो सक्सेस होती है ना। सक्सेस ये नहीं है दैट एरोगेंस की मैं नहीं बताना चाहता या चाहती कि अब मेरा कहाँ से, क्या मैंने स्टेप्स लिए, क्या मैंने ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स नॉट कॉल्ड सक्सेस। दैट मीन्स यू आर हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट रियली गिविंग क्रेडिट टू पीपल। सो सक्सेस बहुत लार्ज टर्म होता है, जिसको अभी तक हम सिर्फ ये कॉनोटेशन में लेते हैं कि जिसके पास पैसा है वो सक्सेसफुल है। प्रोफेशनल सक्सेस है प्रोफेशनल सक्सेस, लेकिन रात के लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेता है, ठीक है, पूरे टाइम स्मोक करता रहता है, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, उसको क्या हम कभी सक्सेसफुल बोलेंगे? उसके पास पैसा टिकेगा ही नहीं, है ना। आएगा भी तो वापस चला जाएगा। ये सब एनर्जी का गेम चल रहा है हमारी जिंदगी में आसपास। अपनी एनर्जी जैसे ही आप चेंज करते हो, एनर्जी चेंज करने का मतलब है, कोई तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इस पिक पॉकेटियर का, कि वो लोगों का मतलब वो ऐसे पैसे चुराता था, पिक पॉकेट करता था, जेब कतरा बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो पैसे ले लेके सबका, और उसके कारण उसके पास पैसे होने लगे, फिर उसको पूरे टाइम फियर रहता था, बिकॉज वो तो पता नहीं था, वो उसको लगता था कि कॉप्स मुझे पकड़ लेंगे, स्कॉटलैंड यार्ड जो वहां का होता है। 1 सेकेंड, प्रिया, कैन यू जस्ट, इफ यू वर देयर, you can Yes, ma'am. Sure, explain sure. this from. So, yeah. सो दिस इज ऑलवेज, मैम हमेशा कहती हैं कि वेन एवर, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी ये कहा कि इफ यू हैव अक्वायर्ड समथिंग फ्रॉम समवन, एनी काइंड ऑफ नॉलेज या किसी भी तरह का पैसा कहीं से भी आया आपको, अनलेस यू एक्नॉलेज इट कि आपको वहां से मिल रहा है, कोई भी मदद है, कोई भी स्टडीज है आपने करी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड व्हेन द वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम रॉन्ग मीन्स, किसी भी तरह के गलत तरीके से हम लोग जब करते हैं, so that money doesn't stay with us. So success means the success of all the areas of your life, right? Which is the relationship, health, wealth, and everything. Yeah. Yes, या, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इसी में यही लिखा हुआ है कि सक्सेस मतलब आप पूरे टाइम माइंड में पीसफुल हो, और फिर उसके आगे हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उस आदमी ने जो जेल से छूटा, जब वो जो जेब कतरा था, पिक पॉकेटर, जब वो जेल से वापस बाहर आया, तो उसने फिर अपनी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस किया, और फिर फाइनली उसको पता लगा कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए।
सो ये बहुत कॉमन चीज होती है, तो इसमें इतना सुंदर तरीका बताया हुआ है सक्सेस का। सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा ऐसा बोलता है या बहुत पैसे वाला होता है, इसका ये थोड़ी मतलब होता है सक्सेस। सक्सेस इज व्हेन यू आर सो मच एट ईज, यू आर सो मच इन योर स्किन। और जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने समझाया था ना, जितना कम डिफरेंस होता है अबाउट हु यू आर एंड हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, आप असल में कौन हो और आप क्या खुल के सबको बता पा रहे हो, लाइक दुनिया के सामने आप ट्रांसपेरेंट पर्सन हो। तो उन्होंने ये बताया था कि जब ऐसे हो जाते हो तो वो जो जर्नी होती है ना, वो सक्सेस टुवर्ड सक्सेस वो जर्नी होती है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें बताया। हम आगे पढ़ते हैं फिर। There was an article published some years ago about Flagler, an oil magnate. He admitted that the secret of his success was his ability to see a major project in its completion. For instance, in his case, he closed his eyes, imagined a big oil industry, saw trains running on tracks, heard whistle blowing, and saw smoke. Having seen and felt the fulfillment of his prayer, his subconscious mind brought about its realization. If you imagine an objective clearly, you will be provided with the necessities in ways you know not of through the wonder working power of your subconscious mind. In considering the three steps to success, you must never forget the underlying power of the power of the creative forces of your subconscious mind. This is the energy in back of all steps in any plan of success. Your thought is creative. Thought fused with feeling becomes a subjective faith or belief. And according to your belief, is it done unto you? या Matt एक dot एक हाँ, आप हाँ, Matt 9:29, दिस इज द बाइबल वर्स। एक सेकेंड, ये वाला एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द विश फुलफिल्ड। ओके, विच मीन्स दैट अपने बिल्कुल एंड गोल को, कि जो घर खरीदना है आप उसमें हो, आप उसकी पूजा करा रहे हो, सब प्रोसेस पीछे फ्लैशबैक में देख रहे हो कितने अच्छे से स्मूथ हो गया, जबकि वो घर अभी आया भी नहीं आपकी जिंदगी में। तो इसमें एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन का है अबाउट एन ऑयल मैग्नेट, मतलब ऑयल इंडस्ट्री के वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े। वो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बने अपने विजुअलाइजेशन की पावर की वजह से। तो वो क्या विजुअलाइज करते थे, अपनी सीक्रेट टू सक्सेस विजुअलाइज करते थे, राइट। तो वो पूरा देखते थे अपनी मन की आंखों से, आंखें बंद करके ये देखते थे कि मैं बहुत एक बड़ी ऑयल इंडस्ट्री का मालिक हूं। वो देखते थे, ऑयल जनरली ट्रेन्स में कैरी होता है ना, वो राउंड वाले जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, है ना, कंपार्टमेंट्स जो राउंड से होते हैं। तो वो इमेजिन करते थे कि ट्रेन्स ट्रैक पे जा रही हैं, उनके इंडस्ट्री का ऑयल कैरी कर रही है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। वो उन ट्रेन्स की विसिल ब्लोइंग की आवाज अपने कानों में सुनते थे, और उन ट्रेन्स में से जो धुआं निकलता है उसको विजुलाइज करते थे, जिसमें उनके इंडस्ट्री का ऑयल जा रहा है। ठीक है, और ये लगातार देखते देखते करते विजुलाइज करते, तो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिवली अपनी ड्रीम को होता हुआ, फुलफिल्ड होता हुआ देखा, और उसको थैंक कर करके उनके लाइफ में ये रियलाइजेशन आता गया। और सारी वो चीजें जो नेसेसरी थी उनकी सक्सेस में, सही लोग, सही सर्कमस्टांस, सही क्लाइंट, वक्त पे पेमेंट आना, ये सारी चीजें होती गई। और धीरे धीरे ही बिकेम एन इंडस्ट्री मोगुल, बहुत बड़े आदमी बने। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमने कल 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस पढ़े थे कि अपने काम से प्यार करो, उसमें 200% डाल दो, और उसमें बेस्ट हो उसके बारे में ज्ञान को कलेक्ट करके, है ना, ये चीज हमने पढ़ी थी। और तीसरा ही पढ़ा था कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे लोगों का भी बहुत मुनाफा हो रहा है, उनकी जिंदगी बदल रही है ना, इस तरह से। तो ये 3 चीजें लॉ ऑफ सक्सेस होती हैं जिसके कारण इंसान आगे बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि ये भी बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। अरे knowledge of a mighty force in you, which is capable of bringing to pass all your desires, gives you confidence and a sense of peace.
Whatever your field of action may be, you should learn the laws of your subconscious mind. When you know how to apply the power of your mind, and when you are expressing yourself fully and giving of your talents to others, you are on the sure path to true success. If you are about God's business or any part of it, God, by His very nature, is for you. So, who can be against you? With this understanding, there is no power in heaven or on earth to withhold success from you. Thank you so much, Megha, for reading so beautifully. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you so much. थैंक यू। सो ये लास्ट में यही बताया है कि दुनिया की कोई ताकत है जो आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। देयर इज नो पावर इन दिस यूनिवर्स दैट कैन स्टॉप योर सक्सेस अगर आप वो 3 लॉज ऑफ सक्सेस को फॉलो कर रहे हो, दैट आप दिल से ऑनेस्टली सही तरीके से काम कर रहे हो, अपना 200% काम को दे रहे हो, आप अपनी बेटरमेंट, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका काम दूसरों का भी भला कर रहा है। ये लॉज ऑफ सक्सेस है एंड 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सो ये सारी चीजें सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, मतलब इट इज फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो ये करते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आप गॉड के अलाइनमेंट में हो, यूनिवर्स के फ्लो में हो। तो जब फ्लो में होते हैं तो कोई सक्सेस, और वैसे भी आप आपके शब्दों की वजह से जब किसी और को सक्सेस मिलती है तो वो सक्सेस मल्टीप्लाई मल्टीफोल्ड रिटर्न होके आपकी जिंदगी में आती है। अगर आप किसी और के बारे में बोलने से या क्रेडिट देने से अपने आप को रोक रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि अगर कोई इंसान, जो पिछले वाले एक्सपीरियंस में लिखा था कि वो जो पिक पॉकेटर था, अगर आप किसी और से पैसा ले रहे हो तो इसका मतलब है लैक एंड लिमिटेशन आपके अंदर है, जिसके कारण आपके पैसे जाते जाएंगे। इसी तरीके से जब किसी की सक्सेस में, आप किसी भी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, किसी की भी तारीफ कर रहे हो, किसी को क्रेडिट दे रहे हो, कुछ भी आपने कुछ किया, उनके बारे में आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सेल बढ़ जाएगी आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब है उनकी अगर सेल $20 होगी तो आपकी जिंदगी में $2000 आएंगे। ये लॉ समझना होता है, गिविंग एंड रिसीविंग वाला, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो बहुत मुश्किल से लोगों को पता लगती है। कई लोग इनसिक्योरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत इनसिक्योर होके, दे आर होल्डिंग बैक मी होल्डिंग मनी, you're होल्डिंग बैक रिलेशनशिप्स, you're होल्डिंग बैक हैप्पीनेस, बिकॉज एनर्जी क्या थी, होल्डिंग बैक एंड नॉट लेटिंग आउट, right? So always be with people, be true to yourself, work as a team, be happy, grow, pray for each other, give credit to each other, share each other's success. ये सारी चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं करनी, है ना? फुल ऑन जियो, तभी आता है, तभी वो 8.4 बिलियन 8.5 बिलियन पॉपुलेशन में से मतलब रीच कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। जैसे मैं एमएमबीजी में बता रही थी एक बार, परसों परसों के सेशन में मैंने मैंने 4 स्टेप्स, वो सेशन का नाम था 4 स्टेप जिनके कारण हमारी ड्रीम्स और हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते। उसमें उसमें से एक था इनसिक्योरिटी, दैट वे। सो वो बहुत डिटेल में हम समझाया था कि वो चारों हमको अपनी जिंदगी से निकालना है, ताकि पट 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 बारिश हो जाए हमारी मैनिफेस्टेशन की, इस तरह से। सो इनसिक्योर होके कभी भी काम नहीं करना है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सोच के ओ गॉड हाउ विल आई लुक, हाउ विल इट रियली डजंट मैटर। That's how life is like. So that's all we have in today's session. Thank you so much.